हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम ले रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम, और इंटरनल स्ट्रक्चर में हम वैस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर देख रहे थे। दिस इज वन वैस्कुलर बंडल and vascular bundle in monocot stem that is surrounded by the bundle sheath. This structure, bundle sheath, and bundle sheath is made up of sclerenchyma. Due to the sclerenchymatous bundle sheath, the vascular bundle of monocot are also known as fibrovascular bundle. Reason behind it, that this sclerenchyma is actually the sclerenchymatous fiber. So this is fibrovascular bundle. Then inside to this, towards the outer surface, towards the outer part, phloem is present. This is phloem. Towards the inner surface, xylem. And in xylem, two metaxylem vessels are present. Always two metaxylem. These are two metaxylem. And the protoxylem is either one or two vessels. Two metaxylem vessel, either one metaxylem vessel or two metaxylem vessel. So it looks like either V shape or it looks like Y shape. So xylem in monocot stem, is either V shape or Y shape. This is metaxylem and this is the protoxylem. Endarch or exarch? Huh? Endarch. Protoxylem is present towards the inner side. So the condition is endarch. Xylem and phloem are present in the same radius together, conjoint. Phloem is present only outside to xylem, collateral, and no cambium in between xylem and phloem, closed. So here, this vascular bundle is conjoint, collateral, closed. Then just below to the protoxylem, large intercellular space are present. A cavity is present. And this cavity is known as water filled cavity or water containing cavity, or this cavity is known as protoxylem cavity. And this protoxylem cavity, this is schizolysis genus in origin. Just below to the protoxylem cavity is present. And this protoxylem cavity is schizolysis genus in origin, or this cavity is known as water filled cavity or water containing cavity. So this is a single vascular bundle of monocot stem. In monocot, scattered vascular bundle are present. The peripherals and vascular bundle, small in size, large in number. The central vascular bundle, large in size, few in number. Is it clear? Schizolysis genus. See, अगर हम देखें, these are the different cells.
नंबर ऑफ सेल 9, इंटरसेलर स्पेस बहुत थोड़ा सा है या एब्सेंट है। नाउ कितने सेल बोलो भाई, 9 सेल, इंटरसेलर स्पेस बोलो, इंटरसेलर स्पेस है। और ये इंटरसेलर स्पेस डेवलप हुआ बाय द सेपरेशन ऑफ सेल। ये सेल एक दूसरे से सेपरेट हुए और जब ये एक दूसरे से सेपरेट हुए तो इनसे इंटरसेलर स्पेस डेवलप हुआ। एंड दिस टाइप ऑफ इंटरसेलर स्पेस, दिस इज नॉन एज शाइजोजीनस। शाइजोजीनस टाइप इंटरसेलर स्पेस इज प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन। जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में जो इंटरसेलर स्पेस होता है वो इंटरसेलर स्पेस शाइजोजीनस। दूसरी कंडीशन, नंबर ऑफ सेल 7, यहां पर 9 सेल है, यहां 7 सेल है। इसका मतलब 2 सेल का डीजनरेशन, lysis of cell, the intercellular space is known as lysigenous. If intercellular space or cavity or gland is developed by the separation of cell, schizogenous. Developed by the degradation of cell, lysigenous. और अगर दोनों प्रोसेस एक साथ आ जाएं, schizolysigenous. Is it clear बेटा? बोलो बेटा, ये लास्ट क्लास में अपन ने यहां पर छोड़ा था, ठीक है ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? सो दिस इज मोनोकोट स्टेम वैस्कुलर बंडल। देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर? रूट और स्टेम कैसे आइडेंटिफाई किया? यूनिसेल्युलर रूट हेयर, ये रूट हेयर यूनिसेल्युलर है, क्यूटिकल नहीं है, रूट है। क्या आप बता सकते हैं डाइकोट या मोनोकोट? बोलो भाई, कैन यू आइडेंटिफाई इट वेदर इट इज डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट? बोलो, नहीं बता सकते। रूट हेयर मोनोकोट में भी होते हैं, डाइकोट में भी होते हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते कि मोनोकोट है या डाइकोट है, पहली बात। दूसरी बात, यहां अगर आप देखें तो रूट हेयर, दे आर ओनली एंड ओनली इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। ये एपिडर्मल सेल है, यही इलोंगेट करके रूट हेयर बना रहा है। दिस लेयर इज एपिडर्मिस एंड इन रूट एपिडर्मिस इज ऑल्सो नॉन एज एपिब्लेमा। इसी का एक और नाम होता है राइजोडर्मिस। राइजो मीन्स रूट, डर्मिस मीन्स स्किन, रूट का स्किन राइजोडर्मिस। बिलो टू द एपिडर्मिस multi-layered structure, large intercellular space, oval shape structure. And this layer is known as cortex. Very well developed, involved in the storage of food. ये पूरा का पूरा रीजन जनरल कॉर्टेक्स और द कॉर्टेक्स, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होता। ठीक है बेटा, डायरेक्ट जनरल कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स आया। सबसे अंदर वाला लेयर
Endodermis made up of barrel shaped cell. This is the endodermal layer. An endodermal layer is made up of barrel shaped cell. This layer is physiologically very important in root. स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस का कोई बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है, लेकिन रूट के अंदर इसका बहुत बड़ा फिजियोलॉजिकल रोल है. रीजन, यहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप एंड पैसेज सेल आर प्रेजेंट. और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, this endodermal layer is responsible for conversion of apoplastic pathway in symplastic pathway. एंडोडर्मिस तक वाटर का एब्जॉर्प्शन पाथवे मोस्टली एपोप्लास्टिक होता है, कभी कभी सिम्प्लास्टिक होता है, लेकिन एंडोडर्मिस ऑनवर्ड सिम्प्लास्टिक हो जाता है. ठीक है भाई. यहां पर इसके अंदर की तरफ ऑन द रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल, साइड वाला वॉल और एंड वॉल, इधर देखो बेटा. यहां अगर हम देखें तो ये लेयर है एंडोडर्मिस, और इस एंडोडर्मिस में ये रेड कलर में कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन. मेनली, कभी कभार लिग्निन आ सकता है, लेकिन मोस्टली सुबेरिन. सुबेरिन का डिपोजिशन होगा रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल पर, अंदर वाली वॉल पर और साइड वाली वॉल पर. और इससे क्या होगा कि वाटर दो सेल के बीच के स्पेस से होता हुआ अंदर नहीं आ पाएगा. मींस apoplastic pathway is stopped. So here Casparian strip, and this is formed by the deposition of suberin on radial and tangential wall. तो फिर वाटर अंदर कैसे जाएगा? हाँ भाई, स्टील एंडोडर्मिस तक आ गया. एंडोडर्मिस का अंदर का पूरा पार्ट है स्टील. एंडोडर्मिस से वाटर स्टील के अंदर कहां से आएगा? यहां अगर आप देखो तो पासेज सेल, और पासेज सेल जो होता है उस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता. यहां से वाटर स्टील के अंदर एंटर करेगा. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंडोडर्मल लेयर वर्क्स एज अ वाटर टाइट जैकेट. क्योंकि सुबेरिन का बना हुआ है बेटा, और सुबेरिन जो होता है वाटर इम्पेरिवियस होता है, वाटर इम्परमेबल होता है, वाटर उसको क्रॉस नहीं कर सकता. तो इस वजह से ये एक वाटर टाइट जैकेट बन जाता है आउटसाइड एंड इनसाइड टू द स्टील. स्टील के बीच में, स्टील और आउटसाइड टू स्टील के बीच में वाटर टाइट जैकेट फॉर्मेशन का काम
एंडोडर्मिस। ठीक है भाई। इट ऑल्सो प्रिवेंट द लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टील। ये एस्पिरिन स्ट्रिप होने की वजह से वाटर वापस स्टील से बाहर नहीं आ सकता। इनसाइड टू एंडोडर्मिस, द नेक्स्ट लेयर, that is the pericycle. ये pericycle, and pericycle is made up of thick walled parenchymatous cell. This is the pericycle, and pericycle is made up of thick walled parenchyma. हाँ भाई, थिक वॉल्ड पेरेनकाइमा को क्या बोला था? थिक वॉल्ड पेरेनकाइमा को स्क्लेरेनकाइमा बोल देंगे। ये कैसे पॉसिबल है बेटा? हाँ, प्रोजेनकाइमा। थिक वॉल्ड पेरेनकाइमा इज नॉन एज प्रोजेनकाइमा। अरे रुक जाओ, अभी थोड़ी देर पूरा कर लें अपन। हाँ, क्या आप यहां तक बता सकते हैं कि ये मोनोकोट बना रहा हूं या डाइकोट बना रहा हूं? बोलो भाई, अब बता दो, डाइकोट है या मोनोकोट है? याद रखो, रूट हेयर ट्राइकोम नहीं है, रूट हेयर यूनिसेलुलर है, और ये मोनोकोट और डाइकोट दोनों में होते हैं, इसलिए हम नहीं बता सकते। यहां तक हम ये नहीं बता सकते कि ये मोनोकोट बनेगा या डाइकोट बनेगा। अब इसके बाद वैस्कुलर बंडल, और रूट में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं दे आर रेडियल। रेडियल का मतलब जाइलम फ्लोएम, साथ साथ या अलग अलग? हाँ, अलग अलग। हाँ भाई, अब बता सकते हो डाइकोट या मोनोकोट? हाँ, कैसे पता लगाया कि डाइकोट? 4 जाइलम बंडल, ये पूरा एक जाइलम बंडल, 1 2 3 4, 4 जाइलम बंडल। हाँ भाई, 4 जाइलम बंडल, डाइकोट और मोनोकोट? अप टू 6 डाइकोट, मोर देन 6 मोनोकोट। एक्सार्च है, एंडार्च है? हाँ, प्रोटोजाइलम किधर? पेरिफेरी की तरफ, सेंटर की तरफ? पेरिफेरी की तरफ, और प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ होगा तो एक्सार्च। दिस इज प्रोटोजाइलम, दिस इज मेटाजाइलम, कंडीशन इज एक्सार्च। ठीक है भाई। एक और दूसरा डिफरेंस जिससे आप पता लगा सकते हो बेटा, शेप ऑफ द वेसल। पॉलीगोनल शेप डाइकोट, स्फेरिकल मोनोकोट। ये जो है ये वेसल्स हैं बेटा, और पॉलीगोनल वेसल डाइकोट, स्फेरिकल वेसल मोनोकोट। तो दो जगह पे आप पता लगा सकते हैं, एक तो नंबर से और दूसरा शेप से। आपको पता लगाना है नंबर से। ठीक है, ये तो हो गया जाइलम। इन बिटवीन जाइलम फ्लोएम इज प्रेजेंट। यहां पर दो जाइलम के बीच में फ्लोएम, and when xylem and phloem are present in different radius separately, the condition is known as radial vascular bundle. ये फ्लोएम होगा, और ये दोनों मिलकर ये हो जाएंगे रेडियल वैस्कुलर बंडल। एक बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं आप सबको, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर रूट के अंदर किसी भी तरह का कोई कैम्बियम नहीं होता है, याद रहे।
यहां पर किसी भी तरह का कोई कैम्बियम नहीं है, ना इंट्रा है ना इंटर है। रूट में ना कोई इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है ना कोई इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, पहली बात। दूसरी बात, अरेंजमेंट, स्केटर्ड रिंग अरेंजमेंट, ऐसा कुछ नहीं देखते। रिंग अरेंजमेंट और स्केटर्ड स्टेम में देखेंगे, रूट में नहीं देखेंगे। देन द इनरमोस्ट पार्ट, and the innermost part is known as pith, and pith is less developed, inconspicuous. Inconspicuous means very less developed. ये बहुत कम डेवलप होगा, लेकिन मोनोकोट रूट में बहुत ज्यादा डेवलप होगा। देन just below to the phloem, few parenchymatous cell are present. Below to the phloem vascular bundle, or below to the phloem in between two xylem, parenchymatous cell are present. And these parenchymatous cell, they are known as conjunctive tissue. And this conjunctive tissue later on form the major part of vascular cambium. डाइकोट का रूट है बेटा, और डाइकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। डाइकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर वैस्कुलर कैम्बियम बनता है, और वो वैस्कुलर कैम्बियम का मेजर पार्ट कंजक्टिव टिश्यू बनाएगा। दिस इज पेरेन्काइमा। यहां पर अपने एनसीईआरटी में जहां सेकेंडरी ग्रोथ दिया है ना रूट में, वहां एक लाइन बहुत प्रॉब्लम करता है। वहां पर उन्होंने ये नहीं लिखा कि क्या बना रहा है, वहां क्या लिखा है, vascular cambium in root are formed by the cell which are present just below to the phloem, just below to the phloem, conjunctive tissue. ये conjunctive tissue responsible for the formation of major part of vascular cambium. Pericycle in dicot plant, this pericycle is responsible for the formation of lateral root. इधर देखो, ये प्राइमरी रूट, इस प्राइमरी रूट से ब्रांचेस निकले, एंड दीज ब्रांचेस आर नोन एज लैटरल रूट। जो रूट के ब्रांचेस होते हैं, उन्हीं रूट के ब्रांचेस को बोलते हैं हम लैटरल रूट, और लैटरल रूट बनते हैं पेरिसाइकल से। पेरिसाइकल स्टील का पार्ट या एक्स्ट्रा स्टील? हाँ भाई, पेरिसाइकल स्टील का पार्ट है या एक्स्ट्रा स्टील है? हाँ, स्टील का पार्ट। अरे भाई, एंडोडर्मिस के अंदर के सारे लेयर स्टील, एंडोडर्मिस के अंदर के सारे लेयर स्टील। तो पेरिसाइकल स्टीलर रीजन में स्टील का पार्ट है, इसलिए रूट ब्रांचेस आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। पेरिसाइकल से बन रहा है, स्टील के अंदर से बन रहा है, इसलिए रूट ब्रांचेस आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। स्टेम के ब्रांचेस कॉर्टेक्स से बनते हैं, और कॉर्टेक्स स्टील के अंदर या स्टील के बाहर? हाँ, बाहर है, इसलिए स्टेम ब्रांचेस एक्सोजीनस इन ओरिजिन, रूट ब्रांचेस एंडोजीनस इन ओरिजिन, स्टेम ब्रांचेस एक्सोजीनस इन ओरिजिन। क्लियर है बात? इसके साथ साथ पेरिसाइकल दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम। जो कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन पूरी तरह से रूट में पेरिसाइकल से होगा। Another thing, this is also responsible for formation of small part of vascular cambium. Vascular cambium का मेजर पार्ट कंजक्टिव टिश्यू बनाएगा। वैस्कुलर कैम्बियम का मेजर पार्ट कंजक्टिव टिश्यू बनाएगा, और थोड़ा सा पार्ट पेरिसाइकल बनाएगा। क्लियर है डायग्राम भाई? इस डायग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन? अब एक बात, एक मिनट बेटा,
एक बात, अगर आप लास्ट क्लास को याद करें तो लास्ट क्लास में जहां भी हमने लेयर बनाया उसके सामने टिश्यू लिखा था कि ये पैरेनकाइमा है, ये कोलेनकाइमा है, ये स्क्लेरेनकाइमा है। यहां लिखा रीजन सब पैरेनकाइमा। जाइलम फ्लोएम को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी अपन ने इस डायग्राम में लिखा है सारा का सारा पैरेनकाइमेटस। ठीक है, हाँ बेटा जी बोलो। कॉर्टेक्स, अगर हम स्टेम की बात करें तो कॉर्टेक्स जो होता है स्टेम में 3 पार्ट में आता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो जनरल कॉर्टेक्स जो है कॉर्टेक्स का ही एक पार्ट है। रूट में हम दोनों को ऑलमोस्ट सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, लिख लेते हैं। रीजन होता है यहाँ हाइपोडर्मिस होता ही नहीं है। हाँ जी, और रेडियल वॉल, ये वाला वॉल, हाँ आउटर की तरफ यूजुअली नहीं होता है कैस्पेरियन। अगर आउटर पर भी हो गया तो पानी अंदर कहां से आएगा? हाँ, पासेज सेल से तो भाई, पासेज सेल से तो वाटर इसके अंदर आएगा, लेकिन बाहर से जो वाटर आ रहा है यहां से कॉर्टिकल रीजन से, वो एंडोडर्मिस में कैसे आएगा? एंडोडर्मल सेल में तो सारे एंडोडर्मल सेल में वाटर आ सकता है भाई, इधर देख लो, सारे एंडोडर्मल सेल में वाटर आ सकता है, लेकिन जब वो स्टील में एंटर करता है तो वो एंटर करता है थ्रू द पासेज सेल। आप एक चीज और नोट करो, यहां पर डायग्राम दिख रहा है सबको अच्छी तरह? पासेज सेल की पोजीशन दिख रही है, जाइलम की पोजीशन और पासेज सेल की पोजीशन देखो। जाइलम की और पासेज सेल की पोजीशन, ये पासेज सेल है, ये जाइलम है। मींस these passage cell are responsible for the direct transfer of water from stellar region, extrastellar region to the xylem cell via pericycle। यहां से डायरेक्टली वाटर यहां पर, क्योंकि याद रखो वाटर का कंडक्शन जाइलम करता है, और जो वाटर जाइलम में एंटर करेगा उसी का कंडक्शन हो सकता है। तो ये पासेज सेल डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं वाटर को फ्रॉम द एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन टू द इनसाइड जाइलम। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये हुआ हमारा डाइकोट रूट। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं मोनोकोट रूट से, ऑलमोस्ट सिमिलर है, फ्यू डिफरेंसेस आर देयर। डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर ऑफ जाइलम बंडल, number of xylem bundle usually 2 to 4 up to 6। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। फ्यू वेस्कुलर बंडल, लार्ज साइज, लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल। मोनोकोट रूट यूजुअली more than 6, and more than 6 condition is known as polyarch। Shape of xylem vessel, here polygonal and here spherical or oval shaped। Then third is pith, inconspicuous in monocot root, very well developed। Then conjunctive tissue, and this conjunctive tissue responsible for formation of major part of vascular cambium। मोनोकोट में वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होता, बिकॉज मोनोकोट रूट डज नॉट शो द सेकेंडरी ग्रोथ। वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में बनते हैं, और मोनोकोट प्लांट जो होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा। कर सकते हो आइडेंटिफाई?
जो चीज आपको डायग्राम में देखनी है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर आया और डायग्राम में आपको आइडेंटिफाई करना है, तो जो आपको देखना है वो देखना है नंबर। पहली चीज तो नंबर देखना है और दूसरा आपको शेप ऑफ वेसल देखना है। ठीक है बेटा, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है अपना विदाउट डायग्राम बेस डिफरेंस करने के लिए, तो इनके बेस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डायग्राम बेस आता है तो आपको पहले दो कैरेक्टर देखने हैं। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन टिल हियर? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा ऑनलाइन में? प्रोजेनकाइमा इज थिक वॉल्ड पेरेनकाइमा, स्टील, ऑल द लेयर्स प्रेजेंट इनसाइड टू द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर का जो पार्ट होता है उस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं स्टील। अब अगर हम देखें तो ये तो डाइकोट मोनोकोट हुई, एक स्पेशल टाइप की रूट होती है, एंड दीज रूट्स आर नोन एज एरियल रूट। एरियल रूट, ये एरियल रूट प्रेजेंट होती है इन द एपिफाइट्स। एपिफाइट जानते हो बेटा? ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, दूसरे प्लांट को केवल सपोर्ट की तरह यूज करते हैं। ये पैरासाइटिक नहीं होते हैं यूजुअली। तो इनमें जो रूट्स होती है वो रूट्स एयर में होती है, एंड दीज रूट एब्जॉर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सॉइल में नहीं है ये प्लांट, लेकिन वाटर रिक्वायर्ड है, तो ये क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेंगे। और मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने के लिए इनमें एक स्पेशल टिश्यू होता है, वेलामेन। और ये वेलामेन टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है भाई? and filament tissue that is commonly observed in the orchids and vanda। जो ऑर्किड प्लांट होते हैं और वेंडा प्लांट होता है, दोनों के दोनों एपिफाइट्स हैं। इन दोनों में वेलामेंट टिश्यू होगा और ये वेलामेंट टिश्यू मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेगा। इस पूरे में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए बेटा। Now the leaf, and there are two different type of leaf। अब लीफ अलग अलग क्यों बनी बेटा? क्या रीजन है? ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से टू टाइप ऑफ लीफ बने? वो तो रीजन वही, वो तो डिफरेंस है, पर ऐसा कौन सा फैक्टर था जिसकी वजह से लीफ दो तरह के हो गए? दैट इज द लाइट इंटेंसिटी। इधर देख लो बेटा, अब इन प्लांट्स द ओरिएंटेशन ऑफ लीफ कैन बी आइदर वर्टिकल और ऑब्लिक, और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है बेटा? या तो लीफ वर्टिकल हो सकती है, ऑब्लिक हो सकती है, या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकती है। अगर वर्टिकल लीफ है तो दोनों सरफेस पर लाइट इंटेंसिटी इक्वल और अनइक्वल? बोलो भाई, लाइट ऊपर से आ रहा है, दोनों सरफेस पर लाइट इंटेंसिटी, हाँ। और जब दोनों सरफेस पर लाइट इंटेंसिटी इक्वल होगा तो दोनों सरफेस एक जैसे होंगे। टू सरफेसेस आर देयर बट बोथ द सरफेस आर सेम टाइप। सेम टाइप, आइसो बाइलेटरल। पहले टाइप का लीफ आया हमारा आइसो बाइलेटरल। कितने सरफेस? एक या दो? दो सरफेस हैं, लेकिन दोनों सरफेस एक जैसे। सो इट इज ऑल्सो नॉन एज इक्विफेशियल लीफ। दूसरी कंडीशन, द ओरिएंटेशन ऑफ लीफ इज हॉरिजॉन्टल। और जब हॉरिजॉन्टल होगा तो अपर सरफेस पर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा या कम? नीचे वाले पर। तो ऊपर वाला सरफेस अलग होगा, नीचे वाला सरफेस अलग होगा।
दो अलग अलग सरफेस होंगे, ऊपर वाला अलग नीचे वाला अलग, तो ऊपर वाला डोर्सल, तो इस तरह के लीफ को हम बोलेंगे डोर्सी वेंट्रल लीफ। दो अलग अलग सरफेसेस, वन सरफेस इज डोर्सल एंड अनदर सरफेस इज वेंट्रल। तो लाइट इंटेंसिटी की वजह से, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ की वजह से, two different type of leaves are present. One is isobilateral and another is dorsiventral. Dorsiventral leaf. And in case of dorsiventral, two surfaces are present and both the surfaces are different. So the leaf is known as bifacial leaf. Bifacial, two different surfaces. In dorsiventral leaf, this is usually in dicot plant. डाइकोट में होगा, लेकिन अगर हम देखें तो एक्सेप्शनल केस है, एक प्लांट होता है लिलियम, ये लिलियम मोनोकॉट है, लेकिन इस मोनोकॉट में डॉर्सीवेंट्रल लीफ, एक्सेप्शन। यहां अगर हम डॉर्सीवेंट्रल में देखें तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ, हॉरिजॉन्टल अरेंज्ड लीफ, and that's why unequal light intensity or unequal light quantity. दूसरी तरफ आइसोबाइलेटरल में, आइसोबाइलेटरल is commonly present in मोनोकॉट, लेकिन यहां पर दो प्लांट है, एक होता है नीरियम, एक होता है यूकेलिप्टस। ये दोनों के दोनों डाइकोट है, लेकिन इनमें आइसोबाइलेटरल लीफ। ठीक है भाई, अब हम लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इधर देख लेना बेटा, अगर हम यहां लीफ की बात करें, लीफ इज हैविंग टू सरफेसेस, अपर एंड द लोअर। Upper surface is known as adaxial, lower surface is known as abaxial. Here, usually, stomata are not present on the upper surface. This is the upper surface, upper epidermis, and in upper epidermis, either stomata is absent or if present, few number of stomata. यहां पर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा कहां पर है बेटा, ऊपर या नीचे? और जब लाइट इंटेंसिटी ऊपर ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा होगा। तो प्लांट ने क्या किया, ट्रांसपिरेशन लॉस को रोकने के लिए या तो ऊपर स्टोमेटा ही नहीं दिए, और अगर स्टोमेटा है तो नंबर कम कर दिया, पहला। दूसरा क्या किया कि यहां पर इसके ऊपर क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल जो है दिस इज थिक क्यूटिकल, this is cuticle and this is the upper or adaxial epidermis। और जो एडेक्शियल सरफेस होती है इसी का दूसरा नाम होता है वेंट्रल सरफेस। नीचे की तरफ दिस इज द lower epidermis, and lower epidermis cuticle is present, but it is thin cuticle. Stomata is present. This structure is
स्टोमा या स्टोमेटा। या तो स्टोमेटा केवल लोअर सरफेस पर होंगे, अगर दोनों सरफेस पर स्टोमेटा है तो लोअर पर ज्यादा होंगे, अपर पर कम होंगे। लोअर सरफेस को हम बोलते हैं लोअर एबैक्सियल और द डोर्सल। यहां भी ये वाला लेयर एपिडर्मिस होगा, ये क्यूटिकल होगा। Then the region present in between upper epidermis to lower epidermis, ये पूरा रीजन, this region is known as leaf mesophyll, and leaf mesophyll is the ground tissue system of leaf. लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है उसको बोलते हैं हम मीजोफिल। और यहां पर ये मीजोफिल टू डिफरेंट पार्ट में differentiate. The mesophyll which is present towards the upper epidermis, this is made up of elongated cell with very few intercellular space. यहां पर ऊपर की तरफ जो होंगे लॉन्ग सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होगा, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा होंगे। और इसी वजह से आप देखना डाइकोट प्लांट में लीफ का अपर सरफेस लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, अपर सरफेस लाइट और डार्क, डार्क ग्रीन, बिकॉज इट possesses पैलिसेड पैरेन्काइमा। और अगर आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए ना मोनोकोट डाइकोट लीफ का, जो आपको डाइकोट लीफ का अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन या मोनोकोट लीफ का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसमें आपको पैलिसेड ही ढूंढना है। अगर पैलिसेड मिल गया तो डाइकोट, और पैलिसेड नहीं है तो मोनोकोट। इस पैलिसेड पैरेन्काइमा के बेस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है। पैलिसेड पैरेन्काइमा is present only and only in dicot. This is known as palisade tissue or palisade parenchyma. Towards the lower surface, spherical cell with large intercellular space. This is known as स्पॉन्जी टिश्यू और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्टोमा के ऊपर स्पेस, स्टोमेटा के ठीक ऊपर एक स्पेस होता है और इस स्पेस को बोलते हैं हम सब स्टोमेटल कैविटी। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में जो आपको आइडेंटिफाई करना है पैलिसेड टिश्यू, इससे अपना आइडेंटिफिकेशन होगा कि मोनोकोट है या डाइकोट है। देन वैस्कुलर बंडल, इफ विल टॉक अबाउट द लीफ, इन लीफ वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन वीन रीजन। जहां पर वीन्स होंगी वहीं पर वैस्कुलर बंडल होंगे, पहली बात। दूसरी बात, size of vascular bundle in leaf that is directly proportional to vein thickness. जितना मोटा वीन होगा उतना ही बड़ा वैस्कुलर बंडल होगा। क्लियर है बात? अब अगर हम देखें तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ डाइकोट प्लांट है बेटा, और डाइकोट में वेनेशन, हाँ भाई डाइकोट का वेनेशन रेटिकुलेट और पैरेलल, हाँ रेटिकुलेट वेनेशन, ये रेटिकुलेट वेनेशन, दिस इज डाइकोट लीफ, सेंटर में मिडरिब, और ये जो मिडरिब होगा इसका थिकनेस सबसे ज्यादा। देन फ्रॉम इट मेनी लेटरल वेन्स कम्स आउट, दीज आर लेटरल वेन्स,
और बिलैटरल वेन का साइज मिडरिब से कम, और फिर इनसे लार्ज नंबर ऑफ वेनलेट्स, ये स्ट्रक्चर मिडरिब, ये वाला lateral vein, and these are वेनलेट्स। क्या यहां पर वेन और वेनलेट का थिकनेस सिमिलर है? बोलो भाई, क्या यहां पर रेटिकुलेट वेनेशन में वेन और वेनलेट्स का थिकनेस सिमिलर और डिसिमिलर? हाँ, डिसिमिलर। क्लियर है बात? और जब इनका साइज डिसिमिलर होगा तो वेस्कुलर बंडल का साइज सेम या डिफरेंट? हाँ, तो डाइकोट का जो लीफ होता है इसमें वेरिएबल साइज ऑफ vascular bundle, and these variable size of vascular bundle is because reticulate venation is present. Then a single vascular bundle and one vascular bundle that is surrounded by the parenchymatous bundle sheath. Here also bundle sheath is present. This is the vascular bundle, and vascular bundle in leaf are conjoint, collateral, closed. Vascular bundle in leaf, they are conjoint, collateral, closed. चाहे मोनोकोट का हो चाहे डाइकोट का हो. Second thing, this is surrounded by bundle sheath, and this bundle sheath is made up of parenchyma. लीफ के स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में होती है बेटा. बंडल शीट चाहे मोनोकोट लीफ का हो चाहे डाइकोट लीफ का हो, लीफ बंडल शीट आर पैरेनकाइमेटस. साइड में लिख लो इसको कहीं पर. सबसे ज्यादा गलतियां मिस्टेक इसी में होती है भाई. बंडल शीट की अगर हम बात करेंगे तो बंडल शीट ऑफ लीफ इज पैरेनकाइमेटस. देन इनसाइड टू दिस, towards the upper surface, protoxylem is present. Then metaxylem, and towards the lower surface, phloem is present. This is protoxylem, this is metaxylem, and this is the phloem. यहां पर मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ, इधर देख लेना बेटा, what is the position of protoxylem and protophlloem in leaf? Protoxylem adaxial or abaxial? हाँ भाई, प्रोटोजाइलम एडेक्शियल और एबेक्शियल? एडेक्शियल. प्रोटोफ्लोएम एबेक्शियल. फ्लोएम नीचे है ना बेटा, और नीचे वाले को हमने क्या नाम दिया है? एबेक्शियल. ठीक है बेटा, तो एक सिंपल सी बात याद रख लेना, जाइलो का वादा है, जाइलो का वादा है. जाइलम, जाइलम is present towards the ventral adaxial surface. जाइलम is present towards the ventral adaxial surface. तो फ्लोएम किधर हो जाएगा? डोर्सल एबेक्शियल सरफेस. याद रह जाएगा बेटा. जाइलम का वादा है, जाइलम वेंट्रल एडेक्शियल, phloem dorsal abaxial. So this is the xylem and phloem. Then just above and below to the xylem, just above and below to the vascular bundle, cellular patch is present. सेल का एक पेच होगा, and this cellular patch, this is known as bundle sheath extension. याद रहे, ये बंडल शीथ नहीं है, ये एक्सटेंशन है. And this extension is either parenchyma or the collenchyma.
ये एक्सटेंशन या तो पेरेन्काइमा का होगा या कोलेनकाइमा का होगा। फिर बोल रहा हूं बेटा, बंडल शीथ पेरेन्काइमा का है, एक्सटेंशन पेरेन्काइमा या कोलेनकाइमा का हो सकता है। ठीक है, इट्स नॉट द बंडल शीथ। बंडल शीथ तो जो मैंने ब्लू में बनाया ना बेटा, केवल वही बंडल शीथ है, ये वाला बंडल शीथ नहीं है। देन आइसोबाइलेटरल। ठीक है बेटा, अगर हम आइसोबाइलेटरल की बात करें तो हियर वर्टिकली अरेंज्ड लीफ, and that's why equal light intensity on both surface। दोनों सरफेस पर लाइट इंटेंसिटी इक्वल। हाँ बेटा, लास्ट में कुछ, दोनों सरफेस पर लाइट इंटेंसिटी इक्वल होगा या क्वांटिटी इक्वल होगा, तो दोनों सरफेस एक जैसा बनेगा, इसलिए इक्विफेशियल। यहां दोनों सरफेस अलग अलग था तो इसलिए बोला बाइफेशियल। अब डायग्राम देखें हम। This is the upper epidermis, and here stomata are present on the both surface। क्यूटिकल का थिकनेस दोनों सरफेस पर इक्वल होगा। स्टोमेटा दोनों सरफेस पर होंगे, दोनों का नंबर सेम होगा। क्यूटिकल दोनों सरफेस पर होगी, दोनों की थिकनेस सेम होगी। दिस इज स्टोमा। देन upper to lower epidermis, the part is known as leaf mesophyll, and this leaf mesophyll is not differentiated in palisade and spongy। मोनोकोट में दोनों सरफेस एक जैसी होती है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा टिश्यू एक जैसा, ना कोई पैलिसेड ना कोई स्पॉन्जी, लेकिन सेल जो होती हैं स्फेरिकल या ओवल शेप। हियर this is the palisade, and here sorry, this is the leaf mesophyll, and leaf mesophyll compactly packed and rich in chloroplast। याद रहे, यहां पर पैलिसेड और स्पॉन्जी लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन स्फेरिकल शेप होने की वजह से कभी कभी हम इनको स्पॉन्जी लाइक बोल देते हैं। यहां पर डिफरेंशिएशन नहीं है बेटा, और डिफरेंशिएशन नहीं है इसलिए यहां पर ना तो हम पैलिसेड बोल सकते हैं ना स्पॉन्जी बोल सकते हैं, लेकिन सेल का शेप स्फेरिकल होने की वजह से कभी कभी हम इन्हें स्पॉन्जी लाइक बोल देते हैं। देन वेस्कुलर बंडल। हाँ भाई, आइसोबाइलेटरल लीफ मोनोकोट में, और मोनोकोट में वेनेशन पैरेलल और रेटिकुलेट। हाँ, पैरेलल वेनेशन, एंड इन पैरेलल वेनेशन दिस इज द मिडरिब, सबसे थिक होगा। देन ऑल आर lateral veins, and further these lateral veins does not form the venlets। यहां पर वेनलेट नहीं होता बेटा। पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन में बेसिक डिफरेंस वेनलेट, रेटिकुलेट में वेनलेट होता है, पैरेलल में वेनलेट नहीं होता, and that's why here the size of vascular bundle is almost same। केवल मिडरिब के वेस्कुलर बंडल बड़े होंगे, बाकी सारे वेस्कुलर बंडल almost same size। so here almost same size vascular bundle, and here also
These vascular bundle are surrounded by the bundle sheath, and here also the bundle sheath is made up of parenchyma. ये vascular bundle, and vascular bundle is conjoined collateral closed. This is the bundle sheath, and bundle sheath, this is made up of parenchyma. ठीक है भाई, वैस्कुलर बंडल दोनों के एक जैसे होते हैं, दोनों का कंपोजिशन सेम है। डिफरेंस इतना सा है कि डाइकोट में वैस्कुलर बंडल का साइज वेरिएबल होता है क्योंकि रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यहां पर ऑलमोस्ट सेम होता है क्योंकि पैरेलल वेनेशन होता है। हियर दिस इज द प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, and towards the lower surface this is the phloem. So here also vada can be used. Vada matlab xylem is present towards the ventral adaxial surface. ठीक है भाई, इसके ऊपर और नीचे सेल्यूलर पेज, यहां भी a cellular page is present or extension of bundle sheath is present, and in dicot plant, in monocot plant, bundle sheath extension is made up of sclerenchyma. फिर बोल रहा हूं बेटा, बंडल शीथ पैरेनकाइमा का है, एक्सटेंशन स्क्लेरेनकाइमा का है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आता है लीफ बंडल शीथ इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है भाई, दोनों डायग्राम में कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए बेटा। हाँ जी, हाँ हाँ भाई, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड, जनरली पूछता नहीं है स्टूडेंट। भाई मैंने बोला कि जाइलम एडेक्शियल सरफेस है और आपने मान लिया, जबकि प्रॉब्लम है यहाँ तो दोनों सरफेस ही एक जैसी है, एडेक्शियल और एबेक्शियल कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे भाई? भाई लीफ के दोनों सरफेस एक जैसे हैं तो एडेक्शियल और एबेक्शियल कैसे बोलोगे? हाँ भाई, जाइलम और फ्लोएम के रेस्पेक्ट में वो तो उल्टा हो गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन तो वो ये पूछ रहा है कि जाइलम को एडेक्शियल क्यों बोला, जब अपन एडेक्शियल और एबेक्शियल बोल ही नहीं सकते। इधर देखो बेटा, एडेक्शियल और एबेक्शियल कैसे अपन पहचानेंगे कि कौन सा सरफेस एडेक्शियल कौन सा सर्कल एबेक्शियल? पहचान बता रहा हूं, कोई भी लीफ हो आपके पास, लीफ के दो सरफेस होंगे, होंगे ना, अब उन पर हाथ टच करो, फील करो उनको। जो स्मूथ सरफेस होगा, स्मूथ वाला, दैट इज वेंट्रल एडेक्शियल, और जहां पर आपको वीन्स फील हो जाए दैट इज डोर्सल एबेक्शियल। पहली बात। अब ये अपन ने माना कैसे, इधर देखना बेटा, ये स्टेम एक्सिस है, इस स्टेम एक्सिस पर ये लीफ लगा हुआ, तो लीफ का जो पार्ट एक्सिस की तरफ है, स्टेम की तरफ है, वेंट्रल एडेक्शियल। ये स्टेम है बेटा, ये वाला पार्ट मेरी तरफ है, बोलो, तो ये वाला पार्ट हो गया वेंट्रल एडेक्शियल, और जो मुझसे दूर वाला पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट डोर्सल एबेक्शियल, इसके बेस पर। ठीक है बेटा, हाँ, टुवर्ड्स द स्टेम एडेक्शियल वेंट्रल। इधर देखो, अब अगर आप इस डायग्राम में देखो तो एक और स्ट्रक्चर है जो अलग से दिख रही है, कुछ दिख रहा है अलग से, कोई अलग से दिख रहा है इस डायग्राम में जो अपन ने डिफाइन नहीं किया अभी तक भी? एक्सटेंशन तो कर दिया अपन ने स्क्लेरेनकाइमा, ये भी स्क्लेरेनकाइमा, और यहां अगर आप देखो तो ये एक्स्ट्रा लार्ज सेल, एंड दिस सेल इज नोन एज बुलिफॉर्म सेल, एंड बुलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन द ग्रासेस। जो मोनोकोट ग्रासेस होती हैं उन ग्रासेस में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको हम बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल, एंड दिस बुलिफॉर्म सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोलिंग एंड अनरोलिंग ऑफ लीफ।
लीफ को रोल करने में और अनरोल करने में ये बुलीफॉर्म सेल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे अभी देखेंगे, पहले इसमें देख लीजिए, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए बेटा। हाँ बेटा, ये बता दिया मैंने कि दोनों सरफेस है, तो उसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नीरियम एंड यूकेलिप्टस डाइकोट। बेटा नीरियम और यूकेलिप्टस में क्या होता है कि लीफ का ओरिएंटेशन वर्टिकल या ओब्लिक होता है, और जब वर्टिकल या ओब्लिक होगा तो दोनों सरफेस पर लाइट इंटेंसिटी सेम होगी, और इस वजह से आइसोबाइलेटरल। हाँ भाई, क्लियर है ये दोनों। अब हम लेते हैं बुलीफॉर्म सेल। If we'll talk about the bulliform cell, these cells are thin-walled, large, empty, colorless, along the veins in upper epidermis। केवल अपर एपिडर्मिस या एडेक्शियल एपिडर्मिस में होता है, लोअर एपिडर्मिस में नहीं होता। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, दिस सेल कैन एब्जॉर्ब वाटर, दिस सेल कैन रिलीज वाटर। अगर वाटर प्रेजेंट है, if water is present, this can absorb the water. If water is not present, it can release the water. First condition, water deficiency. In environment, water scarcity और water deficiency occur. जब water deficiency होगी, bulliform cell lose water। bulliform cell से water loss होगा, and when water loss occur, cell become turgid or flaccid। हाँ भाई, सेल से वाटर लॉस हुआ है, सेल टर्जिड हो गया, फ्लैसिड होगा। हाँ पक्का, फ्लैसिड सेल। और जब ये सेल फ्लैसिड होगा तो इस सेल का साइज रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये सेल थिन वॉल्ड सेल है। अगर ये सेल नॉर्मल होता, थिक वॉल होता, तो साइज रिड्यूस नहीं होता, लेकिन थिन वॉल्ड सेल होने की वजह से इस सेल का साइज रिड्यूस होगा, और जब सेल साइज रिड्यूस होगा then it leads to the leaf rolling। नॉर्मल कंडीशन में इतना बड़ा लीफ, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, वाटर डेफिशिएंसी आई, जब वाटर डेफिशिएंसी आई तो बुलिफॉर्म सेल से वाटर लॉस हुआ, वाटर लॉस हुआ तो सेल का साइज रिड्यूस हुआ और लीफ रोल कर गई। ठीक है भाई, इस लीफ का फंक्शनल सरफेस एरिया और इस लीफ का फंक्शनल सरफेस एरिया, बोलो भाई। यहां पर जब लीफ रोलिंग हुआ तो सरफेस एरिया कम या ज्यादा, बोलो भाई। और जब सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर कम या ज्यादा, हाँ कम होगा। कंडीशन क्या है, वाटर प्रेजेंट और वाटर डेफिशिएंट। प्लांट को ट्रांसपिरेशन कम करना है क्योंकि पानी नहीं है, एनवायरनमेंट में वाटर नहीं है, इसलिए वाटर सेव करने के लिए प्लांट को ट्रांसपिरेशन कम करना है, इसलिए उसने रोलिंग की। लीफ का साइज छोटा नहीं हुआ है बेटा, इधर देख लो आप, यहां पर लीफ का साइज छोटा नहीं हुआ, लीफ तो अभी भी उतना ही बड़ा है, लेकिन लीफ ने क्या किया, अपना फंक्शनल सरफेस एरिया कम कर दिया, और फंक्शनल सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन लॉस कम होगा। सो हियर reduction in transpiration। then second condition, water abundant। अब वाटर प्रेजेंट है
और water present है, then bulliform cell absorb water, और जब ये water absorb करेगी then it become turgid, और जब सेल टर्जिड हो जाएगा तो लीफ अनरोलिंग हो जाएगी, लीफ वापस से एक्सपोज हो जाएगा, और वापस से एक्सपोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब वाटर अवेलेबल है इसलिए अब ट्रांसपिरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है बात यहां तक बेटा? समझ में आया मैकेनिज्म? बोलो। यहां मैंने लिखा नीरियम एंड यूकेलिप्टस, इसके दो स्पेशल कैरेक्टर है बेटा, नीरियम एंड यूकेलिप्टस लीफ, नीरियम एंड यूकेलिप्टस, इन दोनों के दोनों में मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होता है। हियर मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस इज प्रेजेंट, लीफ की बात कर रहे हैं, और दूसरा पैलिसेड ऑन बोथ सरफेस। एक बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन बेटा। पैलिसेड टिश्यू ऑन बोथ सरफेस आर प्रेजेंट इन नीरियम एंड यूकेलिप्टस। डाइकोट प्लांट है बेटा, और डाइकोट प्लांट में पैलिसेड टिश्यू होता है, लेकिन ये ऐसा डाइकोट प्लांट है जिसमें लीफ है आइसोबाइलेटरल। तो इस आइसोबाइलेटरल लीफ के दोनों सरफेस पर पैलिसेड टिश्यू होता है और बहुत थोड़ा सा स्पॉन्जी टिश्यू होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? बोलो। चलें आगे। स्टोमेटा इधर देख लेना बेटा। अब हाँ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक बेटा? क्या कोई ऐसा प्लांट है जिसमें स्टोमेटा नहीं होता? हाँ भाई, विदाउट स्टोमेटा प्लांट, हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, मीजोफाइट। हाँ, कौन से हाइड्रोफाइट, सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग? हाँ, इन लीव्स ऑफ सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट देयर इज नो स्टोमेटा, अस्टोमेटिक लीफ। दूसरा, इफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन लोअर सरफेस, केवल लोअर, हाइपोस्टोमेटिक। अभी अभी मैंने बताया डाइकोट, डाइकोट प्लांट के लीफ यूजुअली हाइपोस्टोमेटिक। क्या कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि केवल ऊपर की सरफेस पर स्टोमेटा है? केवल ऊपर, लोअर पर नहीं होंगे? फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स जैसे लोटस है, अगर आप लोटस के लीफ को देखो तो लोटस का लीफ लोअर सरफेस वाटर के कांटेक्ट में होता है और अपर सरफेस वाटर से बाहर होता है, तो अपर सरफेस पर स्टोमेटा, और जब केवल अपर सरफेस पर स्टोमेटा हो तो एपीस्टोमेटिक, और अगर दोनों सरफेस पर स्टोमेटा आ जाए एम्फीस्टोमेटिक मोनोकोट्स। ठीक है भाई, क्लियर है बात? तो ये था पूरा का पूरा प्राइमरी ग्रोथ। अभी तक आपका हाइट बढ़ रहा था, और हाइट का बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ। अब आपका बढ़ेगा गर्थ, मोटापा, और मोटापे का बढ़ना, क्या आप सबका मोटापा बढ़ेगा? हाँ भाई, क्या सब मोटे होंगे? हाँ बोलो। आप में से कुछ ही इंडिविजुअल होंगे जो मोटे होंगे, मींस डाइकोट। बहुत बढ़िया। हाँ इधर देखो बेटा, प्राइमरी ग्रोथ,
चाहे टेरिडोफाइटा हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म हो, सब में होती है। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू द जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट। टेरिडोफाइटा और मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। अभी तक आपका हाइट बढ़ाया, अब आपका मोटापा बढ़ाएंगे। और मोटापे का बढ़ना, प्लांट के मोटापे का बढ़ना, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। हाँ, बेटा बातें नहीं। अब देखिए बेटा, secondary growth, and if we'll talk about the secondary growth is growth in girth, diameter or circumference, that is known as secondary growth, but width term is not used. secondary growth के केस में, सेकेंडरी ग्रोथ के केस में विड्थ टर्म को आपको लीस्ट प्रियोरिटी देनी है। दो रीजन है। पहला रीजन, विड्थ लीफ का भी बढ़ता है लेकिन लीफ की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और दूसरा मेन रीजन, रूट एंड स्टेम आर सिलेंड्रिकल। और जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सिलेंडर जो होता है उसकी विड्थ नहीं होती है, उसका डायमीटर या रेडियस होता है। तो growth in girth, diameter or circumference, that is secondary growth. And this secondary growth occurs in the gymnosperm and dicot. This is present in gymnosperm as well as in dicot. In gymnosperm and dicot, this occur in the stem as well as in the root. और चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो, this secondary growth occur by the lateral meristem, occurs by lateral meristem, and there are two different type of lateral meristems are present in plant. First type, that is known as vascular cambium, and second type, that is known as cork cambium. Vascular cambium and cork cambium both are lateral meristem. दोनों के दोनों lateral meristem है बेटा। Vascular cambium is responsible for stellar secondary growth. इससे जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो स्टील के अंदर होगी, उसको हम बोलेंगे स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। एंड कॉर्क कैम्बियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो होगा ये स्टील के बाहर की तरफ सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। एंड दिस सेकेंडरी ग्रोथ यूजुअली एब्सेंट इन मोनोकोट प्लांट। जो मोनोकोट होते हैं, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। इन जनरल मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल केस, दैट इज युक्का। और युक्का के साथ साथ ड्रेसिना। आप देख लीजिए, जहां भी युक्का आया साथ में ड्रेसिना को लाया, और जहां भी आया एज ए एक्सेप्शन ही आया। एक्सेप्शन ही आता है बेटा युक्का ड्रेसिना पूरी एनाटोमी में। तो युक्का ड्रेसिना, डेट पाम, कोकोनट, ये जो प्लांट होते हैं इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है।
मोनोकॉट विद सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है भाई, क्लियर है बात यहां तक बेटा? अब हम आते हैं सबसे पहले स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ, और स्टेम में भी स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। दिस स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ अकर बाय द वैस्कुलर कैम्बियम। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ लीजिए बेटा। हाँ बेटा, बातें नहीं भाई। हाँ जी, हाँ, इन जनरल नहीं। वहां पर एक दूसरे तरह का मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू वो थिकनेस बढ़ाता है, वो अलग मैकेनिज्म है। इधर देखिए बेटा, स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ, और ये जो फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं, इस फ्लो चार्ट में प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा। फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जो भी कैरेक्टर है वेस्कुलर कैम्बियम के, डिवीजन है, सब इसी में आ जाएंगे बेटा। ठीक है भाई। अगर हम स्टील सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें तो इसके दो पार्ट। पहला स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, and stellar secondary growth. This secondary growth occur by the vascular cambium. Stellar secondary growth occur by the vascular cambium. बेटा बातें नहीं। और ये जो vascular cambium होता है, this is made up of two different part. इस vascular cambium के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज इंट्रा fascicular cambium, and second part is interfascicular cambium. Intrafascicular cambium primary in origin, interfascicular cambium secondary in origin. Means vascular cambium is partially primary, partially secondary in origin. ठीक है भाई। पहला कि वैस्कुलर कैम्बियम जो होगा, वैस्कुलर कैम्बियम इज पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन। सेकेंड थिंग, वैस्कुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड ओनली वंस इन लाइफ। एक पर्टिकुलर पोजीशन पर वैस्कुलर कैम्बियम लाइफ में एक ही बार बनता है। Vascular cambium is formed only once in life, remain active throughout the life, but activity is variable. बनेगा एक बार, लाइफ लॉन्ग एक्टिव रहेगा, लेकिन कभी इसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कहीं ज्यादा होगी, कहीं कम होगी। So this is formed only once in life. This is more active towards inner side. याद रखो, अंदर की तरफ हार्मोन कंसंट्रेशन ज्यादा, बाहर की तरफ हार्मोन कंसंट्रेशन कम, इसलिए वैस्कुलर कैम्बियम अंदर ज्यादा एक्टिव होगा, बाहर कम एक्टिव होगा। Vascular cambium is formed only once in life, remain active throughout the life, but the activity of vascular cambium depends on the internal factor and external environmental factor. External factor से भी affect होती है, internal से भी affect होती है। हार्मोन का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा एक्टिव होगा towards the inner side. This is more active in spring.
एनवायरमेंटल फैक्टर का इफेक्ट, स्प्रिंग में ज्यादा एक्टिव, विंटर ऑटम में कम एक्टिव। अब मैंने यहां पर लिखा इंट्रा एंड इंटर। अगर आप देखें, these are the vascular bundle in dicot plant। और डाइकोट प्लांट में जो वेस्कुलर बंडल होता है, इनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या होता है भाई? इंट्रा या इंटर? हाँ, वेस्कुलर बंडल कौन से, ओपन या क्लोज्ड? हाँ, ओपन वेस्कुलर बंडल। और ओपन वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ये वाला लेयर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये वाली स्ट्रक्चर पेरिसाइकल। अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोएम। इन दो वेस्कुलर बंडल के बीच में यहां पर पेरेन्काइमेटस सेल, and these parenchymatous cell, the parenchymatous cell which are present in between two vascular bundle, these cell are known as primary medullary rays। ठीक है भाई, पेरेन्काइमेटस है ये। अब सबसे पहले क्या होगा, इस प्राइमरी मेड्यूलरी रेज में होगा डी डिफरेंशिएशन। फर्स्ट स्टेप इन सेकेंडरी ग्रोथ, डी डिफरेंशिएशन। फर्स्ट स्टेप इन सेकेंडरी ग्रोथ, डी डिफरेंशिएशन। और वो डी डिफरेंशिएशन होगा प्राइमरी मेड्यूलरी रेज में। तो यहां पर जो पहला स्टेप आया, दैट इज द डी डिफरेंशिएशन इन प्राइमरी मेड्यूलरी रेज, और इससे बनेगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये इंट्रा, और यहां पर ये बन गया इंटर। क्या कैम्बियम रिंग कंप्लीट है? बोलो भाई, कैम्बियम रिंग कंप्लीट और इनकम्प्लीट? हाँ, पक्का। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म्ड बाय द डी डिफरेंशिएशन इन प्राइमरी मेड्यूलरी रेज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्राइमरी मेड्यूलरी रेज, and this primary medullary rays leads to the formation of interfascicular cambium and formation of vascular cambium ring। ठीक है बेटा। अब ये जो vascular cambium है, this vascular cambium is made up of टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये तो ओरिजिन के बेस पर है बेटा, इंट्रा एंड इंटर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। शेप के बेस पर भी दो तरह के सेल होते हैं बेटा। 5 मिनट और लूंगा बेटा। शेप के बेस पर भी कैम्बियम में दो तरह के सेल होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल आर इलोंगेटेड सेल। यहां पर अब हम ले रहे हैं दोबारा से वेस्कुलर कैम्बियम, two different shape. Most of the cells are fusiform initial. These are long elongated pointed end cell, and they are more in number. Usually क्या होता है कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के सेल इलोंगेटेड पॉइंटेड एंड सेल होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल होते हैं। मोस्टली फ्यूजिफॉर्म इनिशियल आर कम्स फ्रॉम द इंट्रा, एंड सेकेंड टाइप ऑफ सेल दैट आर नॉन एज रे इनिशियल, एंड रे इनिशियल इज फ्रॉम द इंटर। ठीक है बेटा, मोस्टली इंट्रा से
फ्यूजिफॉर्म इनिशियल आएंगे और मोस्टली इंटर से रे इनिशियल आएंगे। ये स्फेरिकल सेल फ्यू, ठीक, कैम्बियम बन गया, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, बीच वाला लेयर ये वाला हो गया इंट्राफेसिकुलर, ये वाला हो गया इंटरफेसिकुलर, और दोनों ने मिलकर बना लिया वैस्कुलर कैम्बियम। क्लियर है बात यहां तक? अब इसके बाद ये जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, इनमें डिवीजन होते हैं हमारे पेरिक्लाइनल, और जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो लेयर्स बनेंगे नहीं बनेंगे? हाँ, लेयर का फॉर्मेशन होगा, बाहर की तरफ सेल बनेंगे, अंदर की तरफ सेल बनेंगे। ज्यादा सेल कहां, अंदर या बाहर? हाँ, ज्यादा सेल अंदर क्यों बनेंगे? बिकॉज वैस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स द इनर साइड. So here secondary phloem is formed and secondary xylem is formed. Phloem is formed towards the outer surface, xylem is formed towards the inner surface. ज्यादा कौन बना, xylem या phloem? हाँ, ज्यादा xylem बना, बोलो। और xylem जो बनेगा वो 8 to 10 टाइम्स बनेगा। मतलब अब यहां पर इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले पेरिक्लाइनल डिवीजन इन फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। आपके एनसीईआरटी में जहां सेकेंडरी ग्रोथ दिया हुआ है वहां पर लिखा हुआ है द सेल्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम कट इन बोथ डायरेक्शन। कट, कट का मतलब डिवीजन, इन बोथ डायरेक्शन पेरिक्लाइनल डिवीजन। दोनों बाहर भी बनेंगे अंदर भी बनेंगे, बट इट इज मोर एक्टिव टुवर्ड्स द इनर साइड, सो इट प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ सेल टुवर्ड्स द इनर साइड. So next is the periclinal division in fusiform initial and formation of secondary xylem and secondary phloem. इसी डायग्राम को मैं अब दोबारा बना रहा हूं, इधर देख लो बेटा थोड़ी देर के लिए बस। ये लास्ट डायग्राम है, ये लिया मैंने वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है बेटा, ये वाली लाइन ले ली अपन ने पूरी सर्कल के फॉर्म में ले ली। इसके अंदर की तरफ ये ले लिया हमने प्राइमरी जाइलम, ये हो गया वैस्कुलर कैम्बियम, ये हो गया हमारा प्राइमरी जाइलम, और बाहर की तरफ हमने ले लिया ये प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है बेटा, इसी डायग्राम को दोबारा से बना दिया मैंने बेटा, अंदर वाली कैम्बियम रिंग बना दी, अंदर की तरफ जाइलम बना दिया, बाहर की तरफ फ्लोएम बना दिया, और इसके बाहर की तरफ ये मैंने बना दिया पेरिसाइकल। ये हो गया पेरिसाइकल। अब ये कैम्बियम डिवाइड होगा, और जब कैम्बियम डिवाइड होगा इट फॉर्म secondary xylem towards the inner side and secondary phloem towards the outer side. ये secondary phloem. What is the position of secondary phloem with respect to vascular cambium? Secondary phloem के vascular cambium के रेस्पेक्ट में आउटर और इनर, और सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू वैस्कुलर कैम्बियम। हाँ, अब क्वेश्चन आता है आपके, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम विद रेस्पेक्ट टू प्राइमरी जाइलम? हाँ भाई, प्राइमरी जाइलम के रेफरेंस में आउटर और इनर? हाँ, आउटर। क्लियर है बात? तो ये जो रेड वाला हमने बनाया ये सेकेंडरी जाइलम, ज्यादा कौन, जाइलम या फ्लोएम? हाँ, जाइलम बना।
क्लियर है बात यहां तक बेटा? बोलो। अब जब ये हो जाएगा उसके बाद रे इनिशियल में डिवीजन होंगे। अब ये रे इनिशियल डिवाइड करेगा। सो नाउ periclinal division in ray initial, and it form the secondary medullary rays towards the inner side and secondary medullary rays towards the outer side. NCERT में लिखा हुआ है after the vascular tissue formation, after the formation of secondary xylem and secondary phloem, few cell of vascular cambium divide, few cell of vascular cambium divide and form the narrow band of parenchyma, narrow band of parenchyma in radial direction in between secondary xylem to secondary phloem. Few cell of vascular cambium divide, ये few cell of vascular cambium divide and form the narrow band of parenchyma. ये दोनों parenchyma है. In between secondary xylem to secondary phloem. Red वाला आपका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम है, और इसी के बीच में यहां से यहां तक ये बनेंगे सेकेंडरी मेडुलरी रेस. एनसीईआरटी में इनका नाम नहीं दिया है लेकिन क्लियरली लिखा हुआ है नैरो बैंड ऑफ पेरेनकाइमा इन रेडियल डायरेक्शन. ये पेरेनकाइमेटस सेल है, बहुत नैरो होते हैं, सेकेंडरी जाइलम से सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में होते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेस. ठीक है भाई? तो इसके बाद हो गया डिवीजन इन रे इनिशियल एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेडुलरी रेस. क्लियर है बात यहां तक बेटा? तो ये हमारा पूरा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ. इस फ्लो चार्ट को आपको याद करना है बेटा. ठीक है बेटा? उतार लीजिए बेटा. अब ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई. केवल फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर रहा हूं मैं. उसके बाद भी ये प्रोसेस तो चलता रहता है बेटा. ये सेकेंडरी ग्रोथ लगातार चलती रहेगी. पहले फ्यूजिफॉर्म इनिशियल ये लिख रखा अपन ने. इसी सीक्वेंस में होते हैं इवेंट. जो मैंने यहाँ सीक्वेंस लिखा ना बेटा, 3, 4, 5, 6, 7, ये सीक्वेंस है. ठीक है भाई? पॉइंटेड एंड सेल, इस तरह का ये जो सेल होगा इस सेल को बोलेंगे पॉइंटेड एंड सेल. हाँ बेटा, ऑनलाइन में और किसी को कोई कंफ्यूजन? जो एक्चुअल में ऑनलाइन है उन्हीं की बात कर रहा हूं, जो क्लास में बैठ के ऑनलाइन है उनकी बात नहीं कर रहा हूं.
हाँ, रे इनिशियल में बेटा इधर देखो, रे इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहे हैं, अंदर और बाहर दोनों की तरफ, दोनों तरफ सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस बनेंगे। ठीक है बेटा। स्टेम के केस में प्राइमरी ग्रोथ में प्राइमरी मेड्यूलरी रेज और सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। स्टेम के केस में प्राइमरी ग्रोथ में प्राइमरी मेड्यूलरी रेज, सेकेंडरी ग्रोथ में सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, रूट में सारे मेड्यूलरी रेज सेकेंडरी ग्रोथ में। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट एनाटॉमी कंप्लीट करेंगे। मॉड्यूल सॉल्व कर लेना बेटा। उसके बाद अगला टॉपिक। हाँ भाई, प्रतिज्ञा के लिए खड़े होंगे।